Eligibility: any cooperative society registered under any state Multi-State Cooperative Societies Act in the country with suitable provisions in the bylaws to undertake services related to hospital or health education shall be eligible for financial assistance. Just or can somebody read meanwhile? I so that I can open my own PDF. Okay. Um, Related to hospital, healthcare, health education shall be eligible to financial assistance subject to fulfillment of guidelines under this. तो salient features क्या हैं इस स्कीम के? It is a scheme of National Cooperative Development Corporation (NCDC) for financial assistance to cooperation on holistic healthcare infrastructure, education and services. NCDC was established by an Act of Parliament in 1963 as a statutory corporation under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Function: NCDC is involved in planning, promoting, coordinating, financing of cooperative development program at national level. It provides financial, technical support to the cooperative institution of farmer and other weaker section associated with agriculture and allied rural economic activity. NCDC Ayushman Sehkar Fund. The NCDC would extend term loans to tune up to 10,000 crore to prospective cooperatives, including those formed by fresh graduates in any stream of medicine, including Ayush and traditional practices. Okay. Then working capital and margin money to meet operational requirements, interest subvention up to 1% to women majority cooperative, loan period, period of loan will be 8 years, including 1 to 2 year moratorium. The new scheme hopes to promote entrepreneurship among medical graduates who are willing to form a cooperative and serve in rural areas. Then the scheme aligns itself with the focus of national health policy covering the health systems in all dimensions, investment in health, organization of healthcare services, access of technology, development of human resources, encouragement of medical pluralism, affordable healthcare to farmers, etc. तो ये बेसिकली आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में था. एक बार मैं समरी बता देता हूँ फटाफट. तो ऑब्जेक्टिव था टू असिस्ट अफोर्डेबल होलिस्टिक हेल्थ केयर, इसके अंदर हम हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू यूज करेंगे या उनको असिस्ट करेंगे. और बेसिकली आयुष जो फैसिलिटीज होती है जिसके अंदर हमारा आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा, नेचुरोपैथी, ये सब जो चीजें आती है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू बूस्ट करना है. ठीक है. टू देन कोऑपरेटिव सोसाइटी मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी. ये कोऑपरेटिव बनाने का आइडिया जो था हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर भी है, तो उससे अलाइंड है ये. एंड टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके अंदर भी असिस्ट करेगा बाय एक तरीके से हेल्थ केयर का इंक्लूजन करेगा या लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्पेशली इन द रूरल एरियाज जिनके पास हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो नहीं पहुंच पा रही. वो जो गैप्स हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में उसको फुलफिल करने का ये टीम जो है एक तरीके से प्लान कर रहा है. देन टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग एजुकेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा रिलेटेड देयर टू. ठीक है. और एलिजिबिलिटी हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर होती है कोऑपरेटिव किसी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, तो उन सबको इसके अंदर एलिजिबल है. एंड देन हमने देखा एनसीडीसी जो कि है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर दिस स्कीम
and this NCDC was formed by an act of parliament, that is, it is a statutory corporation under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, formed in 1963. Okay. And इसके अंदर एक आयुष्मान सहकार फंड भी है, which has a corpus of around 10,000 crores to prospective cooperatives including fresh graduates. ठीक है, तो fresh graduates को भी इसमें अलाउड करा गया। और वुमेन जो है, वुमेन मेजोरिटी कोऑपरेटिव्स के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1% दिया जाएगा, और जो लोन पीरियड है दैट वुड बी अप टू 8 years इंक्लूडिंग अ 1 to 2 year मोरेटोरियम। तो ये सब चीजें थी। किसी को कोई और पॉइंट इसमें पता हो इस स्कीम के बारे में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अदर रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव, so somebody would like to read these? Should I take it from here? Yeah. Other recently launched initiatives: centralized farm machinery performance testing portal. This portal will facilitate manufacturers in applying, communicating, and monitoring the progress of testing of their machines in a seamless manner. It offers the possibility of integrated management in a unified manner within the organization. Thus, it will help in improving the efficiency of testing institutes, thereby reducing testing time for various agricultural machines and equipments. So, centralized farm machinery performance testing portal. Basically, they are facilitating manufacturers in applying, communicating, and monitoring the progress of testing of their machines. For testing machines, that's it. मतलब जो टेस्टिंग कोई भी if any product is to be released in India, so it has to meet some standard, जो IS स्टैंडर्ड होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के आप पीछे देखते हो, तो फॉर दैट इट हैज टू अंडरगो मैंडेटरली टेस्टिंग जाना पड़ता है किसी BIS लैब वगैरह में। तो द एम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू टेस्ट सच प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है कि हम जो है प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग में टाइम रिड्यूस करें। एंड दूसरा, सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अगर ऐसा प्रोडक्ट्स जो हैं जो जल्दी मार्केट में आ पाते हैं, तो उससे हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा। किसी और को कुछ आइडिया इसके बारे में? ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट। Sahakar Mitra scheme on internship program, SIP. It is a paid internship program launched by the National Cooperative Development Corporation, NCDC. Eligibility: professional graduates in disciplines such as agriculture and allied areas, IT, etc. will be eligible for the internship. Professionals who are pursuing or having completed their MBA degrees in agribusiness, cooperation, finance, international trade, forestry, rural development, project management, etc. will also be eligible. Sahakar Mitra scheme on internship program. I think a few more points are written below. NCDC has earmarked funds to provide each intern a financial support over a 4-month internship period. Benefits: the scheme will provide the young professionals an opportunity of practical exposure and learning from the working of NCDC and cooperatives. Also, it will assist cooperative institutions access new and innovative ideas of young professionals. Should I explain this? Yeah, if you like. Okay, so Sahakar Mitra scheme, it's an internship program. Eligible people are graduates who are from agriculture and allied areas, IT as well, and who have completed their MBA degrees in agri-business, cooperation, finance, international trade, forestry, rural development. So NCDC has earmarked funds to provide intern a financial support, and it gives an exposure and learning from the working of NCDC and cooperatives. Okay. Other schemes in news: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Kisan. I'm sorry.
Why in news? Almost 33 lakh ineligible beneficiaries received 2,326.88 crore under the scheme. Ineligible beneficiaries received 2,326 crore. Objective: provide income support to all landholding eligible farmers' families, irrespective of the land holdings in the country. Supplement financial needs of farmers for procuring various inputs related to agriculture and allied activities as well as domestic needs. Salient features: it is a central sector scheme with 100% funding from Government of India. Income support of 6,000 per year is provided to all landholding eligible farmer families across the country in 3 equal installments of 2,000 rupees every 4 months. Fund is directly transferred into bank account of eligible farmers under direct benefit transfer mode. Farmers can do their self-registration through the farmer corner in the portal or through common service centers. And definition of family for the scheme is husband, wife, and minor children. Responsibility of identification of beneficiary or farmer families rests with the state or union territory governments. The benefit shall be provided to only those farmers' families whose names are entered into the land records except for forest dwellers, northeastern states and Jharkhand, which has separate provisions for land records. Okay, the benefit shall be paid only to those farmers' families whose names are entered into the land records, except for Northeast, Jharkhand, who have separate provisions for land records. All PM Kisan beneficiaries will be given the Kisan credit cards so that farmers can take easy loans from the banks. This will help all such farmers to get short-term loans for crop and animal or fish rearing at a maximum interest of 4% on timely repayment. PM Kisan mobile app was launched on first anniversary of PM Kisan to broaden the reach of the scheme. Using this app, farmers can view the status of their application, update or carry out corrections of their Aadhaar cards, and also check history of credits to their bank accounts. Scheme provides exclusion criteria for certain category of farmers. इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को पता है क्या था एग्जैक्टली स्कीम में? Probably it will be the land holdings only, right? I think initially it was, but later it was rolled out for everybody. Okay. नहीं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड उनके लिए नहीं होगी ना ये? और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ऑल फार्मर्स आर एलिजिबल अंडर पीएम किसान, तो इसको क्या मारेंगे, ट्रू और फॉल्स? एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑब्जेक्टिव में, प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर फैमिली. ओके, एलिजिबल, राइट, एलिजिबल, ऑल एलिजिबल ना. अगर सवाल आता है ना ऐसे कि सिंपल ऑल फार्मर्स आर अंडर दिस, तो उसको क्या ट्रू और फॉल्स? क्योंकि जो नीचे कंडीशन दी है ना कि कुछ मतलब कुछ एक्सक्लूजन भी है नीचे. वो एलिजिबल फार्मर्स भी लिखा है इसलिए क्योंकि वो लैंड रिकॉर्ड्स में एंट्री होना भी जरूरी है, तो दैट्स व्हाई नॉट ऑल फार्मर्स बट फार्मर्स आर एलिजिबल. और बाकी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी दे रखे हैं, वही जो नॉर्मल मतलब काफी रेगुलर वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, एक्स एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा के, एमएलसी, वो सब. तो मेरे ख्याल से नॉट ऑल फार्मर्स बट ओनली एलिजिबल फार्मर्स, लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स. You can read this exclusion part. Okay, exclusion. All institutional landholders. Farmer families in which one or more of its members belong to following categories: farmer and
present holders of constitutional posts, former and present ministers or state ministers and former or present members of Lok Sabha or Rajya Sabha, state legislative assemblies or state legislative councils, former and present mayors of municipal corporations, former and present chairpersons of district panchayats, all serving or retired officers and employees of central or state government, ministries or offices or departments and its field units, central or state PSCs and attached offices or autonomous institutions under government, as well as regular employees of local bodies, excluding multitasking staff or class 4 or group D employees. All superannuated retired pensioners whose monthly pension is rupees 10,000 or more, excluding multitasking staff, class 4 group D employees of above category. All persons who paid income tax in last assessment year. Professionals like doctors, engineers, lawyers, chartered accountants, architects registered with the professional bodies and carrying out profession by undertaking practices. तो बेसिकली सम अप करें तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ऑल दोज ऑफिस बेयरर्स और सेक्रेटरीज एंड देन देखा जाए तो ऑल पर्सन हु हैव पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, वो इनएलिजिबल है इस स्कीम के अंडर. एंड देन प्रोफेशनल हु आर रजिस्टर्ड विद सम प्रोफेशनल बॉडीज, वो भी ग्रुप डी एम्प्लॉइज को छोड़ के. करेक्ट, ग्रुप डी एम्प्लॉइज. नेक्स्ट एफपीओ के बारे में थोड़ा कोई और रीड करेगा? आदित्य, formation and I would like to read. Yeah, please. Okay. Formation and promotion of 10,000 new farmer producer organizations. The operational guideline of the scheme was released in July 2020. All we have to do is read. Okay. First read and then if you can summarize it, then it's good. Okay. The first objective is 10,000 FPOs to be formed in 5 years period from 2019-20 to 2023-24 to ensure economies of scale for farmers. The second objective is support to each FPO shall be continued for 5 years from its year of inception. And the next. The beneficiaries are aggregation of small, marginal and landless farmers. The features is it is a central sector scheme. The FPOs include farmer producer companies registered under the Companies Act, as well as farmers cooperative registered under the Cooperative Societies Act of state government. Implementing agencies are SFAC. Anyone has idea what is SFAC? Small farmer. Agricultural communities. नहीं कंसोर्टियम था, वो कंसोर्टियम था. ये आई थिंक वो भी बना रहा है ना, ई-नाम जो मार्केट है वो भी SFAC. स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. Okay. Second is National Cooperative Development Corporation, NABARD. हाँ, please. Okay. NAFED, NERA-MAC, Tamil Nadu SFACH, Watershed Development Department, Karnataka, and Foundation for Development of Rural Value Chain, FDRVC, which comes under Ministry of Rural Development. Implementing agencies will set up cluster-based business organizations at the state or cluster level. These CBBOs will consist of specialists and will serve as a platform for an end-to-end knowledge for all issues in FPO promotion. NAFED would form the specialized FPOs, which should necessarily be forwardly linked to the market,
agri-value chain, etc. NAFED will provide market and value chain linkages to the FPOs formed by other implementing agencies. NAFED has formed and registered 5 honey farmer producer organizations during current year in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, and West Bengal. FPOs will be provided financial assistance up to rupees 18 lakh per FPO for a period of 3 years. In addition to this, provision has been made for matching equity grant up to rupees 2,000 per farmer member of FPO with a limit of rupees 15 lakh per FPO and a credit guarantee facility up to rupees 2 crores of project loan per FPO. From eligible lending institution to ensure institutional credit accessibility to FPOs, credit guarantee funds will be maintained and managed by NABARD and NCDC. What is NCDC over here? National Cooperative Development Corporation. लास्ट में पढ़ा था ना हमने. Okay. Efforts will be made to form and promote at least 15% of the targeted FPOs in aspirational districts with at least one FPO in each block of these districts. Initially, the minimum number of members in FPO will be 300 in plain area and 100 in northeast and hilly areas. The number could be revised based on experience or need. FPOs will be promoted under one district, one product cluster to promote specialization and better processing, marketing, branding, and export by FPOs. National Project Management Agency, that is NPMA, has been engaged for providing overall project guidance, coordination, compilation of information relating to FPO, maintenance of MIS, and monitoring purpose. Can you summarize this thing? I'm not able to summarize it now because there are so many terms which I'm not aware of. कोई और summarize करना चाहेगा इसको? Okay. Mainly, I think, Not summarization, sort of context I'll tell. Okay, so why we need FPOs if you see now a broader context. So as they mentioned rightly, aggregation of small and marginal and landless farmers. So if you see in Indian context, we have around 85% small and marginal farmers, right? So since such a huge farmers are there with less bargaining capacity, so they need to be brought together. So that is why FPOs was conceptualized. If you see a bit background about this, if you see, as you remember, Ashok Dalway committee was set up now for doubling farmers' income. They had also recommended since India has such a unique condition where small and marginal farmers are dominating, you must set up at least 7,000 FPOs is what they had recommended back then only. I mean in 2006 itself. So that is the sequential development of this scheme. So this is the context, and FPOs will help to establish that forward and backward linkages so that agriculture will develop and prosper. So this is the context which we can remember this scheme. थोड़ा मैं इसमें जो important details है बस उसको read out कर देता हूँ. So the aim is to establish 10,000 FPOs in next 5 years. The scheme started from 1920 and it will go on to the next 5 years, that is 23-24. Then the support to each FPO shall be continued for 5 years from its inception. Okay, so each FPO would be given certain sort of hand holding for the next 5 years from the date of its inception. Okay. Aim, I think, as Vijay has told, aggregation is aggregation of small, marginal and landless farmers, because India mein inka proportion is quite high. 85% of the farmers come into category of small and marginal farmers. Okay. And I think कोई बता सकता है small and marginal farmer की land holding कितना होता है? What is the land holding for small and marginal farmers? Less than 2 acres. वो marginal की होती है सर. Small less than 1 acre, less than
मार्जिनल लेस देन 1 एकड़ है और 1 से 2 के बीच में आते हैं स्मॉल सेल, सॉरी हेक्टेयर, राइट, हेक्टेयर आई थिंक एकड़, एकड़ है आई थिंक, हेक्टेयर इज टू लार्ज, हेक्टेयर इज दैट एंड no, और एक परसेंटेज में It's in hectare terms. हेक्टेयर Less than okay. less than 2 come under small farmers and less than 1 are marginal farmers. I'm sure that एक this चीज is और है, hectares. एक चीज इसमें 86% में भी डिवाइडेड है ना कि स्मॉल कितने हैं और मार्जिनल कितने हैं, किसी को आइडिया है जी? स्मॉल कितने, ऑल्दो मार्जिनल ज्यादा है इसमें परसेंटेज, मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर वालों को परसेंटेज ज्यादा है। ओके, तो मैं समराइज कर देती हूँ, किसी ने पिक्चर भेजी है ग्रुप में। मार्जिनल है बिलो 1 हेक्टेयर, स्मॉल है 1 to 2 हेक्टेयर के बीच में, सेमी मीडियम है 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम है 4 to 10 एंड लार्ज है अबव 10 और 10 अबव 10। Then talking about this is a central sector scheme. अरे समझ लो कि मार्जिनल है कि मर गया, मतलब कि एक से कम ही बचा, कुछ बचा ही नहीं उसके पास, बस आगे एक स्मॉल कर लेना। Then FPOs include farmer producer companies. So these FPOs can either be registered as companies under Companies Act of 2013 or they can be registered as cooperative society under the Cooperative Society Act of state government. Okay. Then there are various implementing agencies like you read SFAC, NCDC, NABARD, NAFED, etc. and etc. Okay. And the approach of this scheme is to ensure a cluster-based business organization at state or cluster level. So these cluster-based business organization, they will consist of specialists who would sort of do hand-holding exercise for these FPOs. यानी FPOs के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने में, उनका नॉलेज एनहांस करने में ये CBBOs जो है वो काम करेंगे। Then NAFED would form specialized FPOs which would necessarily be forward linked to the market. यानी ऐसे FPOs क्रिएट करेंगे जिनका डायरेक्ट मार्केट से लिंकेज हो। ठीक है, there was this example कि सऊदी अरेबिया जो है कुछ इंडिया के महाराष्ट्र रीजन के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज के अंदर वो कुछ एरियाज को ईयर मार्क कर देंगे, वहां से जितना भी प्रोड्यूस निकलेगा that would directly be exported. ठीक है, तो जो अब तक हम SEZ मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में देख रहे थे वैसा ही कुछ हम जो है एग्रीकल्चर एरियाज में भी देख रहे हैं। तो वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है और एक तरीके से मार्केट से फॉरवर्ड लिंकेज कर दिया उसको। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट है। और इसके अंदर नाफेड ने अभी 5 हनी FPOs बनाए, उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड देन देयर इज फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 18 लाख per FPO for a period of 3 years. In addition to that, a matching equity grant up to 2,000 per farmer member of FPO with a limit of 15 lakh per FPO. ठीक है, तो हर इंडिविजुअल फार्मर को एक FPO के अंदर 2,000 रुपीज का एक ग्रांट दिया जाएगा ताकि वो सीड्स और वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। देन क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी अप टू 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन पर FPO। ठीक है, हर एक FPO का अपना एक कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए एक फंडिंग मैकेनिज्म भी है। देन क्रेडिट गारंटी फंड भी है इसके लिए, विच विल बी मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय NABARD एंड NCD। तो जैसे क्योंकि लोन देते हैं, लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ कोलेटरल चाहिए होता है, तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड रहेंगे। एंड एफर्ट्स वुड बी टेकन टू प्रमोट एटलीस्ट 15% ऑफ द टारगेटेड FPOs इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो आई थिंक इंडिया का भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली इट वाज प्रेज्ड बाय UNDP ने काफी प्रेज किया था क्योंकि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। आई थिंक अराउंड 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में और नीति आयोग ने मार्क कर रखे हैं। तो प्लान ये है कि ऐसे 15% जो FPOs हो वो इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हो। Then initially the number minimum members of FPO will be 300 in plain area and 100 in northeast and hilly areas. ठीक है, then FPOs will promote one district one product. ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई FPO है तो ये कोशिश की जाएगी कि वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, ये वाली अप्रोच है।
राइट, बस बाकी आई थिंक हो गया. दिस इज डन एफपीओ वाला. नेक्स्ट इज पीएम फसल बीमा योजना. इसको कोई रीड करे हो? एनीवन? So this scheme, PM Fasal Bima Yojana, this scheme completed 5 years in January 2021. इसके objectives थे, it aims at supporting sustainable production in agricultural sector by the way of providing financial support to farmers suffering crop loss or damage arising out of the unforeseen events. Next is stabilizing the income of farmers to ensure their continuance in farming. Okay. Encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices, ensuring credit worthiness of the farmers, crop diversification, and enhancing growth and competitiveness of agricultural sector, besides protecting the farmers from production risk. The intended beneficiaries are all farmers, including sharecroppers and tenants farmers growing notified crops in a notified area during the season who have insurable interest in the crop are eligible. Initially, it was compulsory for loanee farmers. However, now it has been made voluntary for all farmers, including loanee farmers. PYQ भी है एक related to this. So salient features है इसके. It is a centrally sponsored scheme and it replaced the National Agricultural Insurance Scheme and modified NICE. The restructured weather-based crop insurance scheme is still continued. So coverage of crops है food crops like cereals, millets and pulses. Oilseeds है annual commercial or annual horticulture crops भी included है. Pilots for coverage can be taken for those perennial horticultural commercial crops, horticulture or commercial crops for which standard methodology for yield estimation is available. So coverage of risk and exclusion है. Basic cover है कि coverage of risk mentioned under this category is mandatory. The scheme provides to cover yield losses, sowing to harvesting on an area-based approach basis due to non-preventable risk like drought, dry spells, food or inundation, widespread pest and disease attack, landslides, natural fire due to lightning, storm, hailstorm and cyclone. Next, add-on coverage है that coverage of risk mentioned under this category is not mandatory. The state government's UT in consultation with the state level coordination committee on crop insurance may provide coverage for prevented sowing, planting or germination risk, mid-season adversity, post-harvest losses. Earlier this was mandatory. Localized calamities and attack by wild animals. तो जब locust attack हुआ तो इसमें allowed है. General exclusions है that losses arising out of war and nuclear risk, malicious damage and other preventable risk shall be excluded. Area approach basis है that this principle assumes that all the farmers in notified area, that is insurance unit, face similar risk for notified crop. The insurance unit is notified by the state or UT and is village or village panchayat for major crops and or above village or village panchayat for other crops. So insurance unit is notified by state and is village panchayat for major crops. Major crops के लिए state या village panchayat and or above village panchayat for other crops. ठीक है. Rate of premium payable by the farmer are जैसे खरीफ के लिए है 2% of sum insured or actuarial rate whichever is less.
राबी के लिए है 1.5% ऑफ एसआई सम इंश्योर्ड और एक्चुअल रेट विच एवर इज लेस। कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बोथ एनुअल एंड पेरिनियल और 5% ऑफ सम इंश्योर्ड और एक्चुअल रेट जो भी कम है। तो खरीफ की है 2%, राबी की है 1.5 एंड कमर्शियल की है 5%। सेंट्रल सब्सिडी है कि इनिशियली द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर was shared on 50-50 basis. However, it was restructured in 2020 and now central contribution is up to 30% for unirrigated areas or crops, 25% is for irrigated areas or crops. Districts having 50% or more irrigated area will be considered as irrigated area or district for both PM Fasal Bima Yojana or restructured weather BCIS. And 90% is for northeastern states. So 30% is for unirrigated, 25 for irrigated, and 90 for northeast states. In short, sum of crops है कि states and UTs can either choose scale of finance or district level value of notional average yield at MSP. Farm gate price will be considered for other crops for which MSP is not declared. Special efforts shall be made to ensure maximum coverage of SC, ST, women farmers under the scheme. So allocation of business to insurance companies to be done for 3 years. Earlier, the tenders floated by the states varied from 1 to 3 years period. Okay. States not to be allowed to implement the scheme in subsequent seasons in case of considerable delay by states in release of requisite premium subsidy to concerned insurance company beyond the prescribed time limit. Okay. Cut-off dates for Kharif and Rabi season will be 31st March and 30th September. States have been allowed to set up their own insurance company for implementing the scheme. समराइज हो जाएगा क्या? आप कर दो। तो फसल बीमा योजना काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव बट फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक इसके अंदर प्रोविजन क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स in case of loss or damage to their crop, and stabilizing income of farmer to ensure continuance in farming, encouraging them to adopt innovative and modern agriculture practices, ensuring credit worthiness of the farmer and crop diversification activity. Intended beneficiaries क्या थे इसके अंदर? So all farmers including sharecroppers, tenant farmers, all are included. Okay. Growing notified crop in a notified area during a season who have insurable interest in the crops are eligible. Okay. एक notified area रहेगा जो कि respective state governments determine करेंगे। पहले इसके अंदर ये जो लोन था, ये जो इंश्योरेंस था, ये कंपल्सरी था फॉर दोज फार्मर हु यूज्ड टू टेक लोन। ठीक है, जो भी आरआरबी से जो लोन लेते थे ना उनके लिए कंपल्सरी था, बट इट वाज अमेंडेड एंड नाउ इट हैज बीन मेड वॉलंटरी। ठीक है, अगर आपको मन करता है तो आप लो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते। देन इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इट हैज रिप्लेस्ड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड NAIS. The restructured weather-based crop insurance scheme is still continued, वो अपना चल रहा है। RWBCIS अभी भी चल रहा है। क्रॉप्स कवर करता है फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, कमर्शियल, एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, और कवरेज ऑफ रिस्क एंड एक्सक्लूजन की बात करें तो इसमें दो टाइप के कवर है, एक बेसिक कवर है, एक एड ऑन कवर है। बेसिक कवर इज मैंडेटरी। ठीक है, द स्कीम प्रोवाइड्स टू कवर यील्ड लॉसेस। यील्ड लॉसेस मतलब फ्रॉम सोइंग, यानी जब वो किसान जो है वो बीज डालता है, टू हार्वेस्टिंग, जब वो अपनी फसल काट के वो स्टोरेज में रखता है, उस प्रोसेस
पूरा प्रोसेस को ये कवर करता है, बेसिक कवर ऑन द एरिया बेस्ड अप्रोच ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क लाइक ड्रॉट, ड्राई स्पेल, फ्लड, इंडेंटेशन, दैट इज मतलब वही अगेन फ्लड, वाइड स्प्रेड पेस्ट, डिजीज अटैक, लैंडस्लाइड, नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग स्टॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स की नेचुरल कैलेमिटीज जो है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है बेसिक कवर। Then add-on coverage जो है वो that is not mandatory, and this add-on coverage is decided by the state government in consultation with state level coordination crop committee on crop insurance। ठीक है, तो ये add-on coverage जो है स्टेट के हर स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, then general exclusion that is loss arising out of war, nuclear risk, किसी ने न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, उसमें किसी की फसल बर्बाद हो गई तो उसको ये कवर नहीं करने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चीजें होंगी तो ये ऑटोमेटिकली आप भी कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं कि इसमें तो नहीं कवर करेगा। देन एरिया बेस्ड अप्रोच रहेगा। एरिया बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक इंश्योरेंस यूनिट बनाएगा, यानी एक ज्योग्राफिकल एरिया बनाएगा और उस ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कोई रिस्क होता है या अगर किसी को कोई क्रॉप में नुकसान होता है तो उस पूरे एरिया में जितने भी फार्मर्स है उन सबको कॉमन वो नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान की क्रॉप खत्म हो जाएगी और बाकी सबकी क्रॉप ठीक रहेगी। ठीक है, तो ये एरिया बेस्ड अप्रोच रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस लोगों को दिया जाएगा। देन रेट ऑफ प्रीमियम की बात करें तो खारिफ इट्स 2%। कोई बताएगा खारिफ कौन सा सीजन है? समर और विंटर? बारिश वाला होता है, जून से आगे। करेक्ट, तो समर वाला कह सकते हैं उसको। तो सिंस वो बारिश ज्यादा होती है और मतलब उसमें क्रॉप डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रीमियम हायर साइड में खरीफ के लिए रखा गया एज कम्पेयर टू राबी। ठीक है, राबी में मतलब इतना ज्यादा अनस्टेबल वेदर कंडीशन नहीं होता इंडिया के अंदर, तो इसलिए उसका प्रीमियम कम रखा गया। जैसा कि नॉर्मल इकोनॉमिक्स है ना कि जिसमें रिस्क ज्यादा होगा उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, तो वो वाली चीज है। देन कमर्शियल क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर 5%, अगेन इनमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है और वैल्यू भी ज्यादा होती है, तो 5% इनके लिए रखा गया है प्रीमियम रेट। देन सेंट्रल सब्सिडी पहले 50-50% थी, बट नाउ सडनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि वो अपना शेयर जो है उसको श्रग ऑफ करके ज्यादा बर्डन जो है स्टेट्स के ऊपर डाल रहे हैं, तो उन्होंने अपना डिस्टिंक्शन कर दिया। तो 30% इज फॉर अनइरिगेटेड एरिया, 25% इज फॉर इरिगेटेड एरिया। अब इसमें इरिगेटेड और अनइरिगेटेड कैसे पता लगेगा? तो इरिगेटेड आर दोज डिस्ट्रिक्ट having 50% or more irrigated area for both PM फसल बीमा योजना। ठीक है, और दूसरी वो रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड 90% रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। तो इसमें जो इंश्योरेंस है वो MSP रेट्स पे दिया जाएगा और ऐसी क्रॉप्स जिन पे MSP नहीं देती है गवर्नमेंट, अभी करंटली 23 क्रॉप्स के लिए देती है, ऐसी क्रॉप्स जो MSP के अंडर नहीं आती है तो वहां पे फार्म ग्रेड प्राइस मिलेगा, यानी जो APMC मंडी के ऊपर उनको प्राइस मिलता है वो प्राइस दिया जाएगा इसके अंदर। ऑलराइट, और इसके अंदर एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाएगा, मतलब 3 इयर्स के लिए दिया जाएगा। पहले इट वाज ऑन वेरिएबल पीरियड के लिए था, 1 से 3 इयर्स, अब फिक्स कर दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी को 3 इयर्स के लिए ये बिजनेस में रहना होगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट इफ दे डू नॉट पे दीज इंश्योरेंस कंपनी, अगर टाइम पे नहीं पे करते हैं तो फिर उनको नेक्स्ट सीजन ये स्कीम चलाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे वो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक तरीके से फाइनेंशियल कंप्लायंस भी उनके ऊपर इंश्योर करता है कि वो अननेसेसरीली डिले ना करे ऐसी इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम होता है उसको। तो दैट्स इट विद द स्कीम। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट कोई स्कीम पढ़ेगा? मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ो पढ़ो अक्षय, पढ़ो। नीति जी पढ़िए। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, सब कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना। तो ये सब कंपोनेंट है कृषि उन्नति योजना का। इन सिटू मैनेजमेंट है, तो इनसे तो पता है हुआ। ऑब्जेक्टिव्स है प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट फॉर एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज्ड बाय बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू।
promoting in situ management of crop residue by retention and incorporation into the soil through the use of appropriate mechanization inputs. Promoting farm machinery banks for custom hiring of in situ crop residue management machinery to offset the adverse economies of scale arising due to small land holdings and high cost of individual ownership. Creating awareness among stakeholders through demonstration, capacity building activities, and differentiated information, education, and communication strategies for effective utilization and management of crop residue. तो ये स्पेशली फॉर मैकेनाइजेशन इन फार्म सेक्टर के लिए है, जिसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो क्या कहते हैं राइस स्टबल जो पंजाब वाला प्रॉब्लम है उसके लिए मेनली, मतलब उसका एग्जांपल लेके हम लोग ये कर सकते हैं। और जैसे स्टबल बर्निंग के कारण बहुत पोल्यूशन होता है और फिर उसमें क्या कहते हैं लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है फार्म में, उसको रोकने के लिए और ऑन द फील्ड मैकेनिज्म है तो इन सितु मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, वो फिर आगे वही प्रोमोटिंग फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें कम्युनिटी जैसे एक मशीन पूरी कम्युनिटी यूज कर सकती है तो उसके लिए, और फार्मर्स के बीच जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस पे उनके बीच अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेलेंट फीचर्स में है, कुछ छूट रहा है तो बता देना, ठीक है। सेलेंट फीचर्स है, कोई बोल रहा था? नहीं पढ़ो। It is a central sector scheme applicable in states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and NCT of Delhi. Under the scheme, financial assistance at 50% of the cost is provided to the farmers on individual ownership basis. The financial assistance at 80% of the project cost to the cooperative societies of farmers, producers organizations, registered farmer societies, and panchayats for establishment of custom hiring centers of in situ crop residue management machinery. तो वही सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वेस्टर्न स्टेट्स के लिए, जिसमें दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा है। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 50%, जितने भी कॉस्ट होते हैं फार्मर्स के उसके लिए इंडिविजुअल बेसिस पे है, और फिर 80% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 80% है। So this was promotion of हाँ कर दो। देखो सिंपल ये है, ये जो क्वेश्चनों की स्कीम है ये बेसिकली इसका मोटिव ये था, जो क्रॉप रेजिड्यू हर साल जो जलता था उससे जो पोल्यूशन होता था, तो उससे दो तरह के पोल्यूशन होते थे। एक पहला एयर पोल्यूशन दिल्ली एनसीडी वाले इलाके में, दूसरा जो है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप रेजिड्यू को जला रहे हो तो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी जल रहे थे, तो डुअल लॉस हो रहा था। तो बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो स्पेसिफिकली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और एनसीडी के एरिया में आएगी, ठीक है। इनिशियली हुआ ही था कि बोला गया था जो आप फार्म मशीनरी लो और रेजिड्यू को जो है इन सिटू वे में, यानी कि वही फार्म में ट्रीट कर लो। उसके लिए आपको जो फार्म मशीनरी खरीदोगे उसमें 50% असिस्टेंस मिलेगा, यानी 1 लाख की अगर मशीन होगी तो आपको 50,000 की पड़ेगी, बाकी 50,000 गवर्नमेंट बेयर करेगी। लेकिन अभी हुआ क्या है कि कई सारे, जैसे हम बात करेंगे स्मॉल होल्डिंग्स है, मार्जिनल होल्डिंग्स है, वो लोग ये सब परचेज नहीं कर सकते थे और ये लॉस हो रहा था उन लोगों के लिए, मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ज्यादा बढ़ जाती थी। तो गवर्नमेंट ने ये करा, पहली बात तो गवर्नमेंट ने करा अवेयरनेस लानी शुरू करी स्टेक होल्डर के थ्रू, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे कम्युनिकेशन के थ्रू हो, चाहे इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के थ्रू हो। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो पहले 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करी थी, अभी गवर्नमेंट ने ये बोला नया ये करा है, क्योंकि स्कीम लास्ट ईयर आ चुकी थी। अभी गवर्नमेंट ने ये करा, अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इवन ऐसी रजिस्टर्ड फार्म सोसाइटी जो पंचायत के पास है, हायरिंग सेंटर है, अगर वो ये मशीन को लेती हैं तो उनको 50 की जगह 80% का असिस्टेंस मिलेगा। यानी अगर आप कोऑपरेटिव या कोई भी एफपीओ इनको उठाता है तो उनको 1 लाख की जगह 80,000 गवर्नमेंट पे करेगी, 20,000 खुद पे करेंगे। लेकिन जो बड़े इंडिविजुअल फार्मर हैं जो इनिशियली ले रहे थे उनको 50,000 पे करना पड़ा था, 50,000 गवर्नमेंट पे करेगी।
तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है और इजी कर दिया ताकि पोल्यूशन कम हो और क्रॉप रेजिड्यू से डील कर पाए। मतलब ये बेसिकली हाँ बोलो। ये रिसेंटली करा हुआ है क्या? हाँ नहीं, ये ये मतलब ये स्कीम नहीं, ये लास्ट ईयर आ गया था। पहले 50% इंडिविजुअल वाला वो था, क्या बोलते हैं ये जो क्या क्या था कंसेप्ट लेके आई थी गवर्नमेंट कि 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा। लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट जो है कृषि नौकरी स्कीम के अंडर 80% ये सब ये चीजें लेके आ गई थी। ये क्या बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव वाला जो करा था गवर्नमेंट ने। मतलब इसमें आइडिया ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे अभी भी 50% वाला चल रहा है। अगर आप मैकेनाइजेशन के लिए ये चीज ले रहे हो तो उस पर आपको 50% मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कोऑपरेटिव हो या फिर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो तो इसका मतलब आपकी पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, आप एक कम्युनिटी यूज के लिए ले रहे हो। जैसा ओला का कंसेप्ट होता है ना, कि ओला का कॉन्सेप्ट होता है या उबर का कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हायरिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से ये हाँ पूल्ड इकोनॉमी वाला जो कंसेप्ट हो जाता है, तो इससे किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और वो कॉस्ट जो है वो इजीली शेयर की जा सकती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनको 80% पे ये देंगे, ठीक है, ताकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जो रीच है वो ज्यादा वाइडर लेवल पे पहुंच सके। ठीक है, करेक्ट। अब इनाम कोई समराइज कर दो, सॉरी पढ़ दो पहले, तो इम्पोर्टेंट है। मैं पढ़ लूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू संजय जी। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट (ENAM) बजट 2021 proposed to link 1000 more मंडीज विथ ENAM। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, सैलिएंट फीचर्स है। ऑब्जेक्टिव में पहला है प्रमोट जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी होगी इससे, इंक्रीज फार्मर्स ऑप्शन फॉर सेल, एक्सेस टू मार्केट्स। अब आ रहा है आवाज मेरा या और? हाँ ठीक है। ओके, तो पहला है जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी, इंक्रीज फार्मर्स ऑप्शंस फॉर सेल एंड एक्सेस टू मार्केट्स। नेक्स्ट है लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर्स, बायर्स एंड कमीशन एजेंट्स। तो ट्रेडर्स, बायर्स एंड कमीशन एजेंट्स को लाइसेंस लिबरल करना है। वन लाइसेंस फॉर ऑल फॉर अ ट्रेडर वैलिड अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द स्टेट। ठीक है, सिंगल लाइसेंस मतलब वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टम हो गया यहाँ पे। फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब हो गया? क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होने चाहिए। जैसे क्या होता है कि कोई वीट लेके जाता है, उसको बोलते हैं कि भैया तुम्हारा वीट इस क्वालिटी का नहीं है, तो तुम्हें मतलब उसको बेवकूफ बना के कम रेट में उससे सामान खरीद लेते हैं। तो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि हाँ अगर ये इस क्वालिटी का राइस है तो इतना ही रेट मिलेगा। तो वो चीज है। मैकडॉनल्ड्स वाले कर रहे, गो अहेड, लाइक मैकडॉनल्ड्स वाले कर रहे थे फार्मर्स के आलू के साथ, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग देम द करेक्ट प्राइस। वो मैनसांटो वाला ठीक है, क्या ठीक है। नहीं मॉन्सेंटो वाला नहीं, आई थिंक वो फ्रीटो लेज वाला कह रहे हैं, वो लेज वाला। लेज बट आई थिंक वो लेज में वो कैप्टिव फार्मिंग होती है ना, तो वो खुद ही सेट करके रखते हैं कि ये आप स्पेसिफिक सीड देते हैं उनको और फिर वो स्पेसिफिक वो सीड ही उगाते हैं, तो उसको वो चीज निकल के आती है। प्री डिसाइडेड होता है वो। ये मार्केट ड्रिवन प्राइस डिस्कवरी है ना, तो उसके साथ मतलब जिसका क्वालिटी अच्छा होगा उसका प्राइस ज्यादा होगा, तो उस तरह मतलब हेल्दी कंपटीशन की तरह। मतलब फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी मिले ना, कि जो क्वालिटी अगर किसी एक एप्पल की एक कोई क्वालिटी है, उसको जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड दिल्ली में भी वही होना चाहिए जो कि उसे वो तमिलनाडु में भी वही स्टैंडर्ड मिलना चाहिए एक स्पेसिफिक क्वालिटी पे। तो वन नेशन वन मार्केट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो इससे पॉसिबल हो पाएगा, हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक आफ्टरनून में अपन ने हार्मोनाइज सिस्टम पढ़ा था ना फॉर कंज्यूमर्स, HCH शायद, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था शायद वो। ओके, वो तो नॉमेनक्लेचर होता है, वो कस्टम्स में होता है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वही सारे गुड्स पे वही यूज होता है। एक कोड होता है वो उसके लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो अमंग द कंट्रीज। ठीक है, ओके ओके। तो हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव, इसमें लास्ट वाला बचा था सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस, दैट इज ऑन द फर्स्ट परचेस ऑफ होलसेल परचेस फ्रॉम द फार्मर। तो एक बार मैं ऑब्जेक्टिव बोल देता हूँ। जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी, एक्सेस टू मार्केट्स, वन लाइसेंस फॉर ऑल मार्केट्स इन द स्टेट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगाने हैं एंड सिंगल पॉइंट मार्केट फीस लगेगी। नीचे भी ठीक है। है,
नीचे भी। अच्छा, to promote stable prices and availability of quality produce to consumers। ठीक है, मतलब प्राइसेस स्टेबल रखने हैं एंड अवेलेबिलिटी बढ़ानी है कंज्यूमर्स के लिए। एक और है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन और नियर सिलेक्टेड मंडीज, तो ये भी एस्टेब्लिश करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और फंडिंग आती है एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। किसी को पता है कि इसके बारे में कुछ? एग्रीटेक इंफ्रा फंड पहली बार लग रहा है सुना हुआ, देख लेना कोई, प्लीज इसको बता देना। ठीक है, eNAM is a pan-India electronic trading portal which seeks to network the existing APMCs and other market yards to create unified national market for agricultural commodities। तो ये लाइन मेंस में लिखने के लिए अच्छी है। फिर स्मॉल फाइनेंस एग्री बिजनेस कंसोर्शियम हैज बीन सिलेक्टेड एज लीड एजेंसी। आई थिंक ये संजय पॉइंट बता रहा था थोड़ी देर पहले। SFAC is the lead agency for eNAM. Until now, 1,000 markets across 18 states and 3 UTs have been linked with eNAM. Budget 2021-22 proposes to link 1,000 more mandis. ठीक है, during COVID-19, eNAM platform mobile app has been further strengthened by launching warehouse-based trading module to facilitate trade from warehouses based on ENWR, that is negotiable warehouse receipt। किसी को पता है ये क्या होता है? हाँ, मतलब इससे क्या होता है कि एक तरीके से जैसे स्क्रिप्ट्स होती है ना, तो इसके बेसिस पे कोलेटरल देके फार्मर्स जो वो लोन उठा सकते हैं। करेक्ट, तो बेसिकली ये रिसीप्ट होती है जब तुम अपना मतलब फार्मर अपना सामान लेके जाते हैं, दे कैन कीप इट इन द वेयर हाउस एंड यू विल गेट अ रिसीप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ योर लोन्स। ये बिल्स रिसीवेबल होते हैं कि हमें इतना पैसा मिलने वाला है, उसके बेसिस पे फिर ये उसको शो करके ले सकते हैं क्रेडिट। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल। पहला था वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल एंड FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल। इसमें वेयर बाय FPOs कैन ट्रेड देयर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर कलेक्शन सेंटर विदाउट ब्रिंगिंग प्रोड्यूस टू APMC। ठीक है, तो मतलब याद रखो यार ये चीज, आई थिंक थोड़ा वियर्ड लग रहा है। अरे जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि आप हाँ। होता है ना कहीं डिलीवरी नहीं लेते, सेम उसी तरीके से है कि आपको पहले सामान लाके दिखाना नहीं है कि देख लो फिर खरीदो, आप पहले ट्रेडिंग कर दो, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं तो कुछ चेकिंग या इन्वेस्टिगेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। स्पॉट ट्रेडिंग ऐसा कुछ होता है ना, क्या था वो? हाँ, वो स्पॉट वाला होता है, ऑन द स्पॉट जो सेलिंग होती है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। दूसरा कौन सा होता है? कमोडिटी वाला होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हाँ, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वैसे उसी तरीके से ये भी है ना कि सामान लाके दिखाना नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सबको पता है कि यही सामान होना है, तो जब परचेजिंग हो जाएगी फाइनली डिलीवरी होगी। FPOs है ना, तो उसमें 300 मेंबर्स हैं, तो वो एक अपने आप में ही एक छोटा कम्युनिटी है, तो ऐसे में एक स्टैंडर्ड सेट रहेगा। FPO एक अपने आप में एक कंपनी जैसा ही है, तो वो अपना स्टैंडर्ड सेट रहेगा, तो उसको APMC आने की जरूरत है। एक आइडिया इस eNAM का यही था ना कि APMC में जाना कम कर दे ताकि ये हट जाए बीच में से, ऐसा। हाँ, मतलब वो वन नेशन वन मार्केट वाला आइडिया ना, वो हो जाएगा। जितने भी APMC मंडीज हैं वो सब लिंक हो जाएंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी कम आ जाएगी इसके। हाँ, मतलब घर बैठे ही आपको प्राइस डिस्कवरी बेटर मिल जाएगी। यानी someone sitting in UP can procure crop from APMC in तमिलनाडु, ये आइडिया है। लेकिन पहले उसको APMC में लाना पड़ेगा ना, अगर मान लो कोई सामान ले रहा है ऑनलाइन, तो पहले उसको APMC लाना पड़ेगा, फिर वहां से जाएगा ना। हाँ, करेक्ट। अगर आप ऊपर देखो ना तो 1000 मार्केट्स हैं, तो APMC से एक्स्ट्रा मार्केट्स भी हैं, वो भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। नॉट जस्ट APMC, एक्स्ट्रा प्राइवेट मार्केट्स या इस टाइप के हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। ये यही तो कह रहा है ये पॉइंट शायद, FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल। यहाँ पे बीच में APMC में लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कलेक्शन सेंटर से यू कैन सेल प्रोड्यूस, ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये FPO स्पेसिफिक एग्जांपल है, अदरवाइज APMC मंडी में भी जा सकता है एक इंडिविजुअल फार्मर, या फिर और प्राइवेट मंडीज में भी जा सकता है, और वहां पे एक बार क्वालिटी स्टैंडर्ड सब चेक हो गया और वो रजिस्टर हो गया eNAM के लिए, तो फिर वो वहां से वो फिर कहीं पे भी सेल कर सकता है।
मेरे ख्याल से जैसे ये अमेजोन रिसेंट में पे अभी हुआ, पहले वेरीफाइड नहीं था ये FPO। हाँ एफपीओ शायद बाद में ऐड किया है, पहले नहीं था। पहले से भी एपीएमसी मंडी की तरह, अभी एक तो फॉर्म लॉस के कारण थोड़ा वो लिबरल हो गया ना, फॉर्म लॉस आए हैं, तो उसके अंडर भी उसने स्ट्रेंथन किया है कि आप कलेक्शन सेंटर से भी या फिर एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल एफपीओ सेंटर से भी ला सकते हो, पहले नहीं था, हाँ पहले सिर्फ एपीएमसी था। ई-नैम तो आई थिंक 17 के आसपास से चल रहा है न्यूज में। एफपीओ जो है वो 19 के अंदर आए हैं कंसेप्ट, तो उसके बाद ऐड ऑन इन्होंने ये बेनिफिट कर दिया उनके लिए। इसने बोला है ना ये शायद बहुत पुराने हैं। टाइम पे जो ई-नैम है वो मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया उसने इसको स्ट्रेंथन किया है, मतलब जो मोबाइल ऐप आया है उसमें ये फीचर्स डाले हैं उन्होंने कि एफपीओ को भी लेके किया। अदरवाइज वो अपन बात कर रहे थे ना कि एफपीओ अपने जहां पर है वहीं से भी सेल कर सकता है, ये इंडिविजुअल भी कर सकते हैं ना ई-नैम के साथ। हाँ, ये लास्ट ईयर का एक नोटिफिकेशन है पीआईबी का, वो रीड कर देता हूँ मैं। उसमें ई-नैम में 2 नई चीजें आई हैं, वेयरहाउसिंग बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल और एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। तो जो वेयरहाउसिंग बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल है वो इट इनेबल्स फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस फ्रॉम वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड वेयरहाउसेस नोटिफाइड एज डीम्ड मार्केट्स। फार्मर्स के लिए उन्होंने WDRA के थ्रू बेचने के लिए मॉड्यूल बनाया है। एंड फॉर एफपीओस दे हैव मेड एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल। तो उसमें बेसिकली वहाँ पे मार्केट में अगर वो सिंपल एक पिक्चर या क्वालिटी पैरामीटर भी दिखाते हैं वो ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं, उनको एक्चुअल प्रोड्यूस मार्केट तक ले जाने की जरूरत नहीं है। राइट, वही चीज लिखी ना इसमें, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। करेक्ट। हाँ, जैसे अमेजोन और वहाँ पे फोटो देख के अपन खरीद लेते ना, नीचे वो सब दिया हुआ होता है डिस्क्रिप्शन, वैसे ही होगा। करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़ लूँ? हाँ पढ़ो। Okay. The eNAM platform is made interoperable with REMS platform of Government of Karnataka. This will facilitate farmers of either platforms where can sell their produce in other platforms, thereby increasing their market access. eNAM is now developing a platform to create a digital ecosystem that leverages the expertise of individual platforms across various segments of agri value chain. ठीक है, मैं समराइज कर लो एक बार, ठीक है? ऑल राइट, ऑब्जेक्टिव देखो, जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी होगा, एक्सेस टू मार्केट्स बढ़ेगा, लाइसेंसिंग इजियर कर दिया है ट्रेडर्स, बायर्स, कमीशन एजेंट्स के लिए, 1 लाइसेंस फॉर ऑल मार्केट्स इन द स्टेट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे, सिंगल पॉइंट मार्केट फीस लीवी होगी, स्टेबल प्राइसेस रहेंगे, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी कंज्यूमर्स के लिए, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी मंडीज के पास में। देन साइलेंट फ्यूचर्स में देखो एक बार, फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फंडिंग कहाँ से आती है? एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके बारे में किसी ने पढ़ा, कुछ देखा, किसी को मिला? हाँ, किसी ने भेजा था यार मुझे लगता है वो एग्रीकल्चर, हाँ, वही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अलग है आई थिंक। ये टेक्नोलॉजी है ना इसमें, यार क्लियरली लिखा है। हाँ वैसे मैंने भी AIA को पढ़ा, ये नहीं पढ़ा कभी, पढ़ने भी देख लेंगे इसको। ये AIF अभी लॉन्च किया गया है। हाँ AIF अभी लास्ट ईयर था ना। हाँ मतलब रिसेंटली वाला है। तो AITF पुराना है क्या? ये देखना क्या पड़ेगा पढ़- यार, देख लेंगे तो। ठीक है, देख लेंगे इसको, कमेंट्स में डाल रहा हूँ मैं, इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, नेटवर्क करेगा एग्जिस्टिंग APMCs एंड मार्केट यार्ड्स को। SFSC इज अ लीड एजेंसी, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर अभी तक 1000 मार्केट्स थे, लेकिन बजट ने बोला है कि 1000 और मंडीज को ऐड करेंगे। वेयरहाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल एक अलग होगा एंड FPO बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल होगा। वेयरहाउस के अंदर फार्मर्स जो है निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट का यूज करके डायरेक्टली सेल कर पाएंगे। FPOs में विदाउट ब्रिंगिंग द प्रोड्यूस टू APMC सेल कर पाएंगे FPOs। एंड एक कोलैबोरेशन करेंगे बाकी प्लेटफॉर्म साथ में, कर्नाटका जैसे REMS प्लेटफॉर्म है, इसीलिए बोला है कि प्लेटफॉर्म बनाएंगे। कुछ मिस किया हो तो बोल दो। यार वो लाइसेंस वाला एक पॉइंट है ना, उसमें मतलब जैसे ये नेशनल पोर्टल है ना, नेशनल प्लेटफॉर्म है ना, तो अगर मेरे को मैं यूपी में रह करके मैं ट्रेड करना हूँ, मतलब तमिलनाडु सपोज,
तो क्या मेरे को उधर अलग से लेना पड़ेगा? ये बोल रहा है ना कि वैलिड ऑल हाँ। मार्केट्स इन दी स्टेट। हर स्टेट में अलग अलग होगा शायद, तो मतलब उसका जैसे रीजन भी है ना, मेरे मतलब 28 एग्री मार्केट मार्केट्स वगैरह नहीं स्टेट अभी स्टेट अभी क्या होता है कि एक एपीएमसी मंडी में अगर आपको ट्रेड करना है ना तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऐसे तो 545 मंडीज हैं तो वहाँ पे 545 लाइसेंस लेने पड़ेंगे अगर आपको ट्रेड करना है। तो इसमें बेसिकली ये है कि एक बार आपने लाइसेंस ले लिया फिर वो ऑल ओवर मार्केट है ना स्टेट के अंदर, उन सब में वो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, लाइक मेरे को इंटर स्टेट करना है तो जिन जिन स्टेट में करना होगा उन सबका मेरे को लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसा? करेक्ट करेक्ट जैसे तो मतलब 27 स्टेट तो उनका मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए तभी मैं वहाँ ट्रेड कर पाऊंगा। करेक्ट करेक्ट हाँ वो तो। बेसिकली इसमें ये चीज याद रखो कि इट इज नॉट वन नेशन वन लाइसेंस, तो आप एग्जाम में पूछ सकते हो ऐसा कुछ। वन स्टेट वन लाइसेंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, चलो नहीं आगे। हाँ ठीक है, आई थिंक फिर वाइंड अप करेंगे आज यहीं पे। हाँ 1 घंटे से ऊपर हो गया। 11 बजे तो कर देना, 20 मिनट बचे हैं। हाँ 11। हाँ ठीक है। चलो। बाकी सबकी कैपेसिटी है क्या करने की? अरे 2 ही पे ही हाँ बचा है, कर अगली लेते खत्म हो हैं। रहा है वैसे। हाँ कर लेते हैं, चलो ठीक है ये एग्री वाला खत्म हो जाएगा। 2 ही पे ही बचे, हो जाएगा। कर लो कर लो। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। Recently, Parliament Standing Committee on Rural Development has flagged delay in implementation of watershed development component of PMKSY in पंजाब, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, केरला। यार ये जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, ये वाई न्यूज वाला। हेलो, प्लेसेस पूछ रहे हो? एम आई ऑडिबल? हाँ वो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मतलब उससे ये होता था कि कई बार न्यूज में आई हो सकता आ जाए, वैसे इम्पोर्टेंट होता रादर ठीक है देन ठीक है। क्या तो इशू था। कृषि सिंचाई योजना के ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, कन्वर्जेंस करना है, प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इफ रिक्वायर्ड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर यूज प्लान बनाएंगे। ठीक है। एनहांस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म, enhance physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation। हर खेत को पानी, तो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत जगह काम आता है ये। इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स efficient यूज to make best use of water through appropriate technologies and practices, improve on-farm water efficiency to reduce wastage, increase availability both in duration and extent, enhance adoption of precision irrigation and other water saving technologies, more crop per drop। ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों सारे। ठीक है। एनहांस रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। ऑल राइट, सैलिएंट फीचर्स है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अभी अपने ऊपर देखा था ई नैम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। It is an interministerial scheme that has been formulated amalgamating ongoing schemes, AIBP Accelerated Irrigation Benefits Program, IWMP Integrated Watershed Management Program, On-Farm Water Management component of National Mission on Sustainable Agriculture। ठीक है, तो ये चारों को मिला के बनाया हुआ है स्कीम है ये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वाटर बजटिंग is done for all sectors, namely household, agriculture and industries। ठीक है। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड बनाया जाएगा, हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अंडर PMKSY इन नाबार्ड। तो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड होता है नाबार्ड के अंदर, कृषि सिंचाई योजना के अंदर, फॉर फंडिंग एंड फास्ट ट्रैकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकम्प्लीट मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। A dedicated micro irrigation fund with NABARD under PMKSY has been set up to provide states financial assistance on concessional rate of interest। National Steering Committee under Prime Minister, ये important है बहुत, National Steering Committee with Prime Minister chairman होगा इसका। All concerned ministries होंगे इसमें सुपरवाइज करने के लिए।
ठीक है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ओके, ये कंफ्यूज हो सकता है, याद रखो। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी वाइस चेयरमैन नीति आयोग, इम्प्लीमेंटेशन के लिए है ये। ठीक है, समराइज कर दूं मैं एक बार। हाँ कर दो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि डिले हो रहा था इम्प्लीमेंटेशन में कुछ स्टेट्स में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कन्वर्जेंस करना है इन्वेस्टमेंट्स एट फील्ड लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड वाटर यूज प्लान बनाने हैं हर जगह पे। हर खेत को पानी, एक इनका नारा है। इंटीग्रेट करना है वाटर सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट यूज। तो सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी लानी है, अवेलेबिलिटी में भी, एंड वेस्टेज भी कम करना है। प्रिसीजन इरिगेशन अडॉप्ट करना है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, एक्वीफर्स रिचार्ज के लिए कुछ करो। ओके, फिर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है। AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट एंड हाँ दैट इज पार्ट ऑफ NMSA। फिर वाटर बजटिंग करी जाएगी हर सेक्टर के लिए, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज। 2 फंड्स बनेंगे इसमें, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड नाबार्ड के अंदर आएगा, माइक्रो इरिगेशन फंड ये भी नाबार्ड के अंदर है। ठीक है, 2 कमिटीज बन रही इंपॉर्टेंट, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अंडर प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लो यार कोई और प्लीज। बट उनके ऑब्जेक्टिव अलग है ना, लॉन्ग टर्म के और माइक्रो इरिगेशन फंड के, उसको भी फोकस करना है ना। लॉन्ग टर्म वाला मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, मतलब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते होंगे, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे होते हैं ना, उसमें माइनर और मेजर आते हैं। तो मेजर और मीडियम वाले प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड्स होगा, और ये जो माइक्रो इरिगेशन फंड है ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, जिसमें कंसेशन रेट्स पर इंटरेस्ट लोन मिलेगा, और दोनों नाबार्ड के अंदर होंगे। ठीक है, वो स्टेट को बोला ना, टू प्रोवाइड स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाँ, जो कंसेशनल जैसे 7% पे मान लो 9% पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अब इंटरेस्ट समेशन करके 2% कम कर दिया 7%, तो अब गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट 7% पे देगी, लेकिन उसका जो गैप है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप सस्ते में लोन दे रहे हो तो 2% जो आपने सबवेंशन किया उसका पैसा हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। ओके, हाँ मतलब ये MIF डायरेक्ट स्टेट को देगी, और जो LTIF है वो डायरेक्ट फार्मर को, मतलब फार्मर्स को ले सकती है ना। मतलब कोई किसान डायरेक्ट उसका मेजर प्रोजेक्ट है उसमें नाबार्ड के थ्रू होगा, इसमें लिखा नाबार्ड के थ्रू होगा। नाबार्ड फर्दर देती है ना पैसा, नाबार्ड या तो दे देगी या तो नाबार्ड बैंक्स में वो करती है, इंफ्यूज करती है पैसा। हाँ, तो नाबार्ड तो डायरेक्ट देती नहीं है। हाँ, वही कह रहे हैं, बैंक्स में पैसा इंफ्यूज करेगी ना, जो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, और फिर अच्छा ओके, वहां से आप ले लो। और ये जैसे स्टीयरिंग कमेटी थे ना, तो स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हो गया, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का वाइस चेयरमैन होगा नीति आयोग हो गया। तो चेयरमैन के साथ PM होता है ना नीति आयोग का। करेक्ट। हेलो, हाँ, तो ऐसे याद कर लेना। स्टीयरिंग कमेटी मतलब वो होता है ना जो बोर्ड को स्टीयर करता है, मेन जो आगे होता है, सबसे आगे होता है, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब हो गया ना इम्प्लीमेंटेशन वाली, वो चीज हाँ, ऑब्वियसली ये करेगा, नीति आयोग करेगा। यार शक्तिमान भाई अगला पढ़ लो यार, कंपोनेंट जो है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। तो इसमें क्या है, सबसे पहले AIBP वाज लॉन्च्ड इन 1996 to 1997 टू प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंट टू मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है कि एक्सेलरेट करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट विच वर बियॉन्ड
resource capability of the states or were in advanced stage of completion. तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन अक्टूबर ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन अक्टूबर 2020 the ministry launched a mobile app for geotagging of the components of project under AIBP. This app was developed and वही क्या लिखा है, भास्कर्य नेशनल इंस्टीट्यूट और स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स बाय सैग एंड ये इनक्वाई का क्या मतलब है यार। दूसरा है कि प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना में हर खेत को पानी के अंडर में, ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेस थ्रू माइनर इरिगेशन, ये ऊपर माइनर इरिगेशन में ही था ना, माइनर वो माइक्रो था, ठीक है, बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। उसके बाद है सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम एंड रिपेयर renovation and restoration of water bodies are also being implemented. Third है strengthening carrying capacity of traditional water resources, construction of rainwater harvesting structures, जल संचय, जल मंदिर गुजरात, खत्री कुल हिमाचल प्रदेश, जम्मू नागालैंड, इरी ओरानीस तमिलनाडु, डोंग्स आसाम, काटास और बंदास ये बंद है शायद उड़ीसा एंड एमपी में। ये वो वाले है ना, सॉरी, जो आते हैं ना ट्रेडिशनल, हाँ ट्रेडिशनल फार्म इरिगेशन ऐसा कुछ तो काफी इम्पोर्टेंट, इनके नाम याद करने हैं, हाँ ये थोड़े से नाम होते हैं, ठीक है। जैबू वाला नागालैंड है और इरी ओरियन तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आते हैं PMKSY के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इसका सेकंड पॉइंट है प्रोमोटिंग एफिशिएंट वाटर कन्वीनियंस एंड प्रिसीजन वाटर एप्लीकेशन डिवाइसेस लाइक ड्रिप्स, स्प्रिंकलर्स, पाइवोट्स, रेन गन्स इन द फार्म, जल सिंचन, एक्सटेंशन एक्टिविटीज फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक मॉइस्चर कंजर्वेशन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप अलाइनमेंट एक्सेट्रा, और ICT इंटरवेंशन through NEGP, precision irrigation technologies, on-farm water management, crop alignment, etc., and also to do intensive monitoring of the scheme. The fourth one है integrated water development. नेशनली गवर्नमेंट प्लान है वो, हाँ राइट, ठीक है। तो फोर्थ वाला है इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट। अच्छा, ये सारे अभी तक PMKSY है के अंदर इसी के कंपोनेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और DPAP, और ये DDP एंड IWDP। यार DPAP क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लान है क्या? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है। अच्छा, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ओके। और DDP डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, पता नहीं। ये तो हो गया इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। IWDP तो ये हो गया वर्क कंसोलिडेटेड अंडर दिस कंपोनेंट। अरे नीचे दिया है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान। अच्छा, ओके, डेजर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब इंटीग्रेटेड कंसोलिडेट कर देंगे, राइट। तो ये कंसोलिडेट कर दी जाएंगे इसी के अंतर्गत। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रन ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव्ड सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज, क्लस्टर अप्रोच इन सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, और कन्वर्जेंस विद MG मनरेगा। तो इसके बाद ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर अलग से दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। वही ड्रॉट प्रोन एरिया, पहला है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। द erstwhile rural work program of 1971-72 was redesignated as DPAP during 4th 5-year plan 1969 to 74. The basic objective of the program is to minimize the adverse effects of drought on production of crops and livestock and productivity of land, water, and human resources, ultimately leading to drought proofing of the affected areas. Central and state government in the ratio of 75 to 25 they share the cost. ठीक है, इसमें शेयरिंग कॉस्ट 75-25 है। Desert Development Program, DDP was introduced as a centrally sponsored scheme in 1977-28
The objective of the program is to control the desertification and restoration of ecological balances in the desert areas for development. The central share under each type of ecosystem: hot red not sandy areas 75%, hot arid sandy areas 100%, cold arid areas 100%. उसके बाद है integrated watershed development program. This scheme is under implementation since 1989 to 90. The IWDP scheme is 100% grant in aid from center. The development of non-forest wetlands is taken up under this scheme. मुझे लगता है ये तीनों जितने प्रोग्राम है इसके अंदर है, यही याद रखना इंपॉर्टेंट है. प्लस कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, जैसे जो सबसे लास्ट वाली है ये पूरी ग्रांट एंड एड सेंटर से है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट का, और बाकी दोनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है. काफी पुरानी स्कीम से तो इनको कंसोलिडेट कर दिया गया है ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट से, क्योंकि देख लो सब 69 में, फिर 77 में, लास्ट वाले 89 में. Okay. अच्छा, इसके अलावा एग्रीकल्चर के बारे में कोई और स्कीम्स है क्या जो किसी को पता हो? यार मुझे लगता है इनाम आ चुकी ना, एक बार प्रीलिम्स में इनाम आ चुका है, फसल बीमा भी आ चुकी है, वो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ चुकी है. तो यार अभी अलाइड में बहुत सारी है, जैसे इस बार मत्स्य संपदा योजना जो है, आई थिंक वो भी काफी पॉपुलर स्कीम है, उसके आने के चांसेस हैं. तो आई थिंक अलाइड एक्टिविटीज में और भी काफी सारी हो जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री और. यार एग्रीकल्चर कितना ही है क्या कि अलग से भी है इसमें? अलग से ये तो इतना सिर्फ एग्रीकल्चर का ही है. उसका तो मिनिस्ट्री अलग है ना शायद, उसका फिशिंग वाला. हाँ, मिनिस्ट्री भी अलग कर दिया ना, फिशिंग का भी अलग कर दिया और एनिमल हस्बेंड्री का भी अलग है. हाँ, बट अच्छा, अभी एक ब्रॉडली चीज़ पूरा फॉर्मुलाज है ना, वो 3 मेजर, तो वो डिफरेंट आएगा. वो तो लॉज है ना, स्कीम थोड़ी है. हाँ एग्जैक्टली, वही थोड़ा मेजर है ना, तो इसमें नहीं आएगा वो. हाँ, इसमें देख रहे हैं कि इंडेक्स में कि बहुत सारी स्कीम जो उसमें है अभी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, काफी सारी स्कीम्स है जो अदर मिनिस्ट्रीज में आती है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, तो वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो शायद आगे कवर होंगी. एक साथ कर देना चाहिए था अम्ब्रेला, मिनिस्ट्री वाइज दिया वैसे ना. ठीक है. अच्छा, एक चीज यार जो समीप ने कमेंट्स में बोली है, सब लोग याद रख लो, जो CSS स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए स्टार और हैश यूज करा हुआ है हेडिंग के अंदर. क्या ये हैश? तो स्टार क्या चीज है? हैश सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है. स्टार सेक्टर. हाँ, स्टार मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इसलिए सेक्टर स्कीम है वो. तो एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं. न्यूली लॉन्च स्कीम है आयुष्मान सहकार स्कीम, और दूसरे अदर रिसेंटली लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स देखे थे अपन ने, उसमें क्या क्या था? सहकार मित्र एक है, सहकार मित्र और सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी. ठीक है, करेक्ट. उसके बाद किसान सम्मान, किसान फसल बीमा योजना. एक टेस्टिंग पोर्टल था, सरकार मित्रा था, देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान था, और इसमें हमने देखा सारा अभी रिसेंटली ऑल फार्मर्स के लिए कर दिया गया, ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स के लिए कर दिया गया स्कीम को, और एक्सेप्शंस भी हमने देख लिए इसके अंदर. मेजरली एक्सेप्शन याद रख लेना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट उनको नहीं अलाउड है, और पर्सन हु हैव पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर. ठीक है, तो ये लोग नॉट अलाउड है. फिर हमने FPOs देख लिया. FPOs 10,000 FPOs बनेंगे, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो वही स्टार वाला आ गया. एंड 10,000 FPOs बनाने नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो स्टार्टिंग ईयर देख लो इसका 1920, और एंडिंग ईयर है 23-24. तो ये था इसमें आइडिया.
नेक्स्ट फिर अपन ने देखा पीएम फसल बीमा योजना, और पीएम फसल बीमा योजना के अंदर हमने देखा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि हमने देखा कि सेंटर ने अपना जो शेयर है उसको रिड्यूस कर दिया था यहाँ पे। कितना Right. करें? अलग अलग कर दिया था ना, 3 केसेस देखे थे हमने, 90% फॉर द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न जो है उनके लिए, 30% फॉर अनइरिगेटेड एंड 25% फॉर इरिगेटेड। ठीक है। आदर्श बालक आ गए अभी। क्या आ गए? आदर्श बालक सबसे लेट। आगे चलो। देन अपन ने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए उसके अंडर कृष्णवती योजना थी, उसके अंडर एक सब स्कीम निकाला है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है, तो वो दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है उसके चलते ये इन सिटू मैनेजमेंट के लिए इन्होंने ये मैकेनाइजेशन की स्कीम निकाली है। तो इसके अंदर बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां पर कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा अप टू 50% फॉर इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ सच मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हैप्पी सीडर वगैरह हो गया उनके लिए। और ये स्कीम में 80% रखा गया फॉर कोऑपरेटिव्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी अप टू 80% फॉर कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट हमने देखा ई नैम अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अंदर बेसिकली एक ऑल इंडिया लेवल मार्केट बनाया जाएगा जहाँ पे सारी मंडीज है वो कनेक्टेड होंगी, एंड द फार्मर वुड हैव लिबर्टी कि वो अपनी क्रॉप को ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगा, हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी एक ऑब्जेक्टिव है, सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस। ठीक है, एक ही बार फीस लगेगा और उसके बाद वो जहाँ चाहे वहाँ सेल कर सकता है। देन प्रमोट करेगा स्टेबल प्राइसेस को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोड्यूस को, and it would create provision of soil testing laboratory in and around selected mandi। और ENAM में अभी रिसेंटली हमने 2 एडिशन देखे थे। एक देखा वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल, जिसके अंदर एक ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट मिलेगा जिसको कि फार्मर एज अ कोलेटरल यूज कर सकता है और उसके बदले लोन ले सकता है। देन दूसरा हमने देखा फार्मर ट्रेडिंग मॉड्यूल, यहाँ पे फार्मर को मंडी में अपना प्रोड्यूस लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने एफपीओस के थ्रू ही उनको डायरेक्टली सेल कर सकता है। और फिर ईनाम के अंदर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, बेसिकली पोर्टल बनाया जाएगा, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शनरीज रहेंगे। ठीक है, ये आइडिया था। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखा, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और इसके बारे में थोड़ा बता दे अक्षय, क्या नहीं? ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें मतलब सबसे पहले तो कन्वर्जेंस करना है फील्ड लेवल प्लान्स का, डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह वाटर यूज प्लान्स। हर खेत को पानी एक ऑब्जेक्टिव है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप एक ऑब्जेक्टिव है, वाटर यूज इफिशिएंसी बढ़ानी है, सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूसेज तीनों को इंटीग्रेट करना है, प्रिसीजन इरिगेशन को प्रमोट करना है। 2 अलग अलग फंड्स है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड एंड माइक्रो इरिगेशन फंड, दोनों भी नाबार्ड के अंदर आते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव देखे थे, मेजर मीडियम इरिगेशन के बारे में था, दूसरा था कि कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइनेंस प्रोवाइड करना है। 2 कमिटीज है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अंडर प्राइम मिनिस्टर, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर वाइस चेयरमैन नीति आयोग। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इंटरमिनिस्ट्रियल है। इसके अंदर 5-6 अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं जो अपन नीचे देखेंगे। नीचे है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, जल शक्ति मिनिस्ट्री का है। एक और है हर खेत को पानी, वो भी जल शक्ति मिनिस्ट्री का है। 1996-97 में बनाया था AIBP, वही एम है, मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना है, असिस्टेंट देना है, सेंट्रल असिस्टेंट। अक्टूबर 2020 में मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जियो टैगिंग के बारे में। देन हर खेत को पानी सरफेस माइनर इरिगेशन के बारे में है। कैरिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है। कुछ ये मेजर नाम है, सब ये रटना है इसको अच्छे से, ट्रेडिशनल सिस्टम से सारे। खोरापत कहाँ का है यार बाय द वे, इसको याद है क्या था वो? उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। राइस फार्मिंग ना, अंडर वाटर ट्रेडिशनल। अच्छा, और केरला में एक और था ऐसा ही कुछ, तो किसी को याद हो तो?
कुटनाड करके शायद कुटनाड करके कुटनाड था। सब पढ़ के आए हैं गियास थे ना, उसमें गियास थे ना, GIHS। yes। हाँ जी, वो किसके अंदर आता है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है? FAO। ओके गुड। तो अपन देखते हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। जल मंदिर है गुजरात का, खत्री एंड कूल है हिमाचल का। इसको कैसे याद रखना है, किसी को कुछ याद आए तो बता देना, ठीक है। खत्री एंड कूल हिमाचल का है, जैबो नागालैंड का है, ईरी एंड उरानीस तमिलनाडु का है। इस पे विजय ने कुछ तो कमेंट किया था, क्या था वो? इरीपत्ती इज अ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच was set apart for the maintenance of village tank। इरीपत्ती तमिलनाडु का, ठीक है, लैंड रेवेन्यू का टाइप है एक। फिर जैबो नागालैंड, इरी ओरानिस तमिलनाडु, डोंग्स इन आसाम, कटाज एंड बंधाज ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। इसको रट लो यार किसी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। यार इसके अलावा भी काफी सारे हैं, मतलब कहीं लिस्ट होगी शायद, किसी PT में कवर होता है ये प्रॉपर, शायद आर्ट एंड कल्चर वाली में उसमें होता है पूरा कवर। ये किसी ने भेजा है ग्रुप में, बहुत सारे। ओके ऑसम, ठीक है, आगे देखते हैं फिर अपन। PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। ओके, तो अपन ने AIBP देखा एंड हर खेत को पानी देखा, वो आते जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। पर ड्रॉप मोर क्रॉप आता है एग्री मिनिस्ट्री के अंदर। इसका काम है वाटर कन्वेंस एंड प्रिसीजन वाटर एप्लीकेशन को प्रमोट करना है, एफिशिएंसी लानी बेसिकली। एक्सटेंशन एक्टिविटी मतलब रिसर्च कराएंगे, ICT इंटरवेंशन दिखाएंगे। NEGP क्या है? नेशनल ई-गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रोग्राम। ओके ठीक है। फिर है PMKSY इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मतलब याद रखो यार ये चीज़ की वाटरशेड डेवलपमेंट का जो आता है वो रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इट इज नीदर एग्रीकल्चर नॉर रूरल, ये कौन सा, जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसके अंदर DPAP, DDP एंड IWDP आता है, कंसोलिडेट करा है उन सबको। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रन ऑफ वाटर, क्लस्टर अप्रोच है, कन्वर्जेंस करेंगे मनरेगा के साथ। देन इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं PMKSY वाटरशेड के बारे में। ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम DPAP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो तीनों भी बहुत पुराने हैं, 1971, 77, 1989। एंड DPAP लॉन्च किया था 4th 5 ईयर प्लान में। अदिति पूछ रही कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, आपको पता है? थर्ड आई थिंक, थर्ड में आया। थर्ड में। ठीक है, तो ये डाल दो, नोट कर लो ये चीज़। ओके, तो ड्रॉट प्रोन एरियाज में ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, ड्रॉट प्रूफिंग ऑफ अफेक्टेड एरियाज। एंड इसमें प्रोपोर्शन है 75-25 सेंट्रल और स्टेट का। DDP का है कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर करना है, इसमें भी सेंट्रल एंड इसका शेयर है कुछ ना कुछ तो। देन IWDP जो है 100% ग्रांटिंग एड फ्रॉम सेंटर है, नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड को डेवलप करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। एक और था कि एक जल जीवन मिशन था और एक जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति वो अभियान। भी आगे आएगा मुझे लगता है अभी। अच्छा ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ना वो। तो शायद आगे मिलेगा। वो आई थिंक ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट। 11 बज गए वैसे, वी कैन वाइंड अप। ठीक है गाइस, वाइंड अप कुछ कहना है किसी को? यार इसी में क्विज है ना, ये जो स्कैन करके क्विज होती है। हाँ, वो आखिरी में कर लेंगे यार वो। अच्छा हाँ ठीक है। मतलब अपन, अच्छा एक और चीज, मतलब गाइस जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये हर एक PDF के बाद में अपन क्विज टाइप का कुछ कर लेंगे। जैसे मंथली भी कर रहे हैं तो उसके बाद में किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का उठा ही सकते हैं ना मंथली करने के लिए क्विज। हाँ ठीक। एंड 1 या 2 सेशन विल कीप इट फॉर रिवीजन, ऐसे मतलब रैंडम क्वेश्चन पूछ लेंगे उसी के ऊपर, कितना याद आ रहा है देखते हैं उसके बाद। यार इसको स्कैन कैसे करेंगे, मतलब इसको एक्सेस कैसे करेंगे क्विज को? इसमें किसी को पता है क्या? यार ये QR कोड को स्कैन कर लो ना, आ जाएगा। मतलब कहाँ से कुछ QR कोड स्कैन करने के लिए कुछ किस